Hello everyone, today we will talk about general linear group, some more examples on groups and theorems related to groups. Let's talk about general linear group. F here implies field which can be real, rational numbers, integers, or I yesterday told you it could be addition modulo n. So let's take this example, GLN 2 in Z7 series. Means this is a 2 by 2 matrix in which entries are coming from Z7. How the operation will work now? Basically, let's take two matrices belonging to GLN to Z7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6. Let's multiply this. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Matrix multiplication, usual matrix multiplication. 4, 4 plus 0, 0, 5, 5 plus 6, 6. Now let's calculate. 0 plus 0, 0. 2 4s are 8. 8 plus 0, 8. 0 plus 2 6 are 12. 5 plus 18, 23. Now this is not an answer to this. It should lie in this where entries are coming from Z7, and Z7 has entries like 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar, 7 bar. You may I have just neglected bars here, you may write them. So now we will see this with modulo n. 0 modulo 7, 0, 12 modulo 7, 5, 8 modulo 7, 7 on the 7, 1 remainder, 23 modulo 7, 7 3 is 21, 2 remainder. So this is the answer. This is how operation is applied in GLN F, where F is addition modulo n. Now let's talk about order of the group. Order of group is basically number of elements in that set group G. Under an operation start, the G is a group. Then हम order को denote कैसे करते हैं? Order of G. Let us suppose that G is a set containing n elements. Then order of G would be n. It can also be written as order of G is equal to n. I will use this notation. Now let's talk about order of group of some residue groups, addition modulo n and multiplication modulo n. Let's talk about addition modulo n. In Zn, elements are of the type 0 bar, 1 bar, so on till n minus 1. If we consider Z5, then elements would be 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. How many elements? 5. Basically, order of Z5 is 5, and hence order of every Zn group is n. Now let's talk about multiplication modulo n. इसकी डेफिनेशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की? वो सारे इंटीजर्स जो एक या एक से ज़्यादा है और n से छोटे हैं, सच दैट उन इंटीजर्स के n के साथ GCD 1, HCF 1 है. सो x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स ले लो, इंटीजर्स ले लो, एक ही बात है कि हमने उसको 1 से बड़ा दिखाना ही है, लेस देन n, सच दैट x is 1. Now order of UN is 5. Now this is a new term introduced to you. This is known as phi function. Phi quotient function भी कहते हैं इसको. Basically phi function, phi n क्या होता है? Phi n is number of the integers
लेस देन n ग्रेटर देन 1 सच दैट x कॉमा n का GCD 1 आए हमारे पास। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की डेफिनेशन होती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ UN इज इक्वल टू फाइन। अब फाइन को कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे कि अगर 5m इज इक्वल टू 5m फाइन n प्रोवाइडेड m एंड n आर कोप्राइम, मतलब उनका आपस में GCD 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 15 क्या होगा हमारे पास, 15 किससे बनता है, 3 5 एंड 3 और 5 का आपस में GCD 1 है, सो ये 5 ऑफ 3 हो जाएगा एंड 5 ऑफ 5 हो जाएगा। एंड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास u मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो प्राइम के साथ देखना हो तो उसका ऑर्डर हमेशा p-1 होगा। सो हम वो वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 ऑफ 3 भी यहाँ पे प्राइम है, 5 भी प्राइम है, सो 5 ऑफ 3 वुड बी 3 - 1 दैट इज 2 एंड 5 - 1 दैट इज 4, 2 4 इज 8, हेंस हमारे पास 5 15 आ गया। बेसिकली अब इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 का ऑर्डर आ गया दैट इज 8। अब अगर हमारे पास कोई प्राइम पावर का हो जैसे p⁴n, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5p⁴n को p⁴n माइनस p⁴n-1, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं pn-1 ब्रैकेट्स में p-1। फॉर एग्जाम्पल अब हम 5 ऑफ 72 देखते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 72 का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ब्रेक करेंगे, पहले 2 3 36 2 36 is 9 4 सो 2 की पावर 3 की पावर स्क्वायर। अब हमारे पास ये 8 और 9 का GCD आपस में 1 है, तो हम इसको सेपरेटली कर देंगे, 2 क्यूब 5 3 का स्क्वायर। अब हमने अभी प्राइम पावर का ये वाला फॉर्मूला सीखा है, इसको अप्लाई करते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर 3 1 2 - 1 इंटू 3 - 1 दैट इज 2। अब बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, 572 सिंप्लीफाई करते हैं उसको, 8 - 4 एंड 3 × 2 6 6 × 4 दैट इज 24। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 72 का ऑर्डर क्या आ गया, 24। हमने आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एंड इनवर्स आर यूनिक, मतलब कि कोई भी एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होगी और एक ही इनवर्स होगा एक एलिमेंट का। जैसे हम आइडेंटिटी की बात करते हैं और हम ग्रुप कंसिडर करते हैं G अंडर ऑपरेशन स्टार। अब हम सपोज कर लेते हैं E1 एंड E2 आर आइडेंटिटी ऑफ G एंड E1 इज नॉट इक्वल टू E2, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं बेसिकली एक ही ग्रुप की। सो अब हम E1 आइडेंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, E1 स्टार A इज इक्वल टू A स्टार E1 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ग्रुप। अब हम आइडेंटिटी के द्वारा प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि E2 में हमारे पास आइडेंटिटी है E2 स्टार A इज इक्वल टू A स्टार E2 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ग्रुप। अब हम E1 को एज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कंसिडर करते हैं एंड E2 को एज आइडेंटिटी। अब E2 आइडेंटिटी है, यहाँ से क्या पता लगता है, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E1 स्टार E2। E1 हमारे पास एलिमेंट था तो हमारे पास एलिमेंट वापस आएगा दैट इज E1। अब हम E1 को एज
आइडेंटिटी सपोज करते हैं एंड E2 को एज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो इस वाली स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आता है कि E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E1 स्टार E2। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या था E2, तो हमारे पास आएगा क्या E2। इन दोनों स्टेटमेंट्स से हमें क्या पता लगता है कि E1 इज इक्वल टू E2। अगर हम ग्रुप में दो आइडेंटिटीज ले रहे हैं डिफरेंट, वो सेम ही आएंगे। इससे क्या पता लगता है कि आइडेंटिटी इन अ ग्रुप इज यूनिक। अब हम इनवर्स पे आ जाते हैं कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप। अब हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, सपोज A बिलोंग्स टू G। अब हम इसकी दो इनवर्सेस सपोज कर लेते हैं कि A इनवर्स है जो हमारे पास वो B भी है और A इनवर्स हमारे पास B डैश भी है, where B and B dash belongs to ग्रुप। अब हम इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम इस ग्रुप में कंसिडर करते हैं E इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। सो A स्टार B, G is group under operation this. A star B is equal to E is equal to B star A and A star B dash, क्योंकि B dash भी उसकी इनवर्स है, is equal to identity is equal to B dash star A। अब हम B से कंसिडर करते हैं। B क्या होगा हमारे पास, B कोई भी एक एलिमेंट है ग्रुप का। सो अगर हम उसमें आइडेंटिटी ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पास सेम आना चाहिए। हमने ऑपरेट कर दिया आइडेंटिटी B स्टार। अब E की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं, ये वाली उठा रहे हैं, A स्टार B डैश। अब ग्रुप है, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी इसमें, तो हम यहाँ से इसको एसोसिएट करते हैं B स्टार A स्टार B डैश। अब B स्टार A हमें यहाँ से पता है कि इज इक्वल टू आइडेंटिटी E। अब आइडेंटिटी में अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप का ऑपरेट करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आएगा। सो E स्टार B डैश वुड बी B डैश। हेंस वी हैव प्रूव्ड अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें जो एक के इनवर्स है तो वो इवेंचुअली सेम ही होंगे। इससे क्या पता लगता है कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक।